Okay. In the previous class, we study about electric flux. इलेक्ट्रिक फ्लक्स साउंड जा रहा है ना? साउंड जा रहा है? साउंड आ रहा है? In the previous class, we study about the electric flux. Electric flux means the number of electric field lines. The number of electric field lines passes through a surface. Passes through a surface normally. It is denoted by small phi or capital phi. Mathematically it is given by phi is equal to dot product of E dot S, that is electric flux dot area element. As it is a scalar quantity, first of all, what is electric flux? The electric flux is the number of electric field lines passes through a surface normally. किसी भी surface से होकर के जितना electric field lines pass करेगा normally electric flux कहलाएगा. क्लियर? E जो होता है, E इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल फाई से या फिर कैपिटल फाई से. दिस इज ए स्मॉल फाई एंड दिस इज कैपिटल फाई. Mathematically it is given by phi is equal to dot product of electric field and the area element, that is this is electric field and this is the area element. चूंकि डॉट प्रोडक्ट है तो कल जो हो E जो होगा वो क्या होगा? इट इज ए स्केलर क्वांटिटी. एज इट इज अ डॉट प्रोडक्ट देयरफॉर इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. ये चूंकि डॉट प्रोडक्ट होता है इसलिए क्या चीज है? स्केलर क्वांटिटी है. आप जानते होइएगा कि द डॉट प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होता है, द रिजल्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी, if A dot P is equal to C, then this is a vector quantity, this is also a vector quantity, but the resultant of A dot B is a scalar quantity. This is a scalar quantity. As it is the dot product of E dot ds and the resultant of dot product is always a scalar quantity, therefore electric flux is a scalar quantity. अगर इसका SI यूनिट देखें, इट्स एसआई यूनिट इज, इसका एसआई यूनिट क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम्ब स्क्वायर, सॉरी पर कूलम्ब, एंड एसआई यूनिट ऑफ एरिया इज मीटर स्क्वायर. तो इसका एसआई यूनिट क्या होगा? दैट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब. चूंकि और हम इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक और यूनिट होता है, द अदर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज वोल्ट पर मीटर. Therefore the volt per meter and meter square, here meter 1 meter cancel out, therefore its SI unit is volt meter. ठीक. So in the previous class we study about the electric flux. Electric flux means the number of electric field lines passes through a surface normally. किसी भी surface से होकर के जितना electric field lines pass करेगा normally electric flux कहलाएगा. पहला चीज. दूसरा चीज कि इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल फाई से या फिर कैपिटल फाई से. अगर क्लोज्ड फिगर है तो कैपिटल फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है. क्लोज्ड फिगर मींस या स्क्वायर हो, क्यूब हो, क्यूबाइड हो, सिलेंडर हो, ये सब क्लोज्ड फिगर आता है. तो क्लोज्ड फिगर के केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैपिटल फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है. मैथमेटिकली इट इज गिवन बाय phi is equal to E dot S, means the dot product of electric field and the area vector. It is a scalar quantity. This is a scalar quantity because it is the dot product. It is the resultant of dot product. This is vector. This is vector and this is also vector, and the resultant of the dot product of two vector quantities is always a scalar. Therefore flux is a scalar quantity. Clear? It is a scalar quantity. Its SI unit is, as the SI unit of electric field is Newton per coulomb, this is Newton per coulomb and this is meter square. The SI unit of area vector is meter square, therefore its SI unit is Newton meter square per coulomb. The other unit of electric field is volt per meter. तो इलेक्ट्रिक फील्ड के जगह पर वोल्ट पर मीटर ले लेंगे और एरिया वेक्टर के जगह पर मीटर स्क्वायर. वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, हेयर 1 मीटर कैंसिल आउट, देयरफॉर इट्स एसआई यूनिट इज वोल्ट मीटर. मींस
कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, पहला चीज कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो पास करेगा किसी भी सरफेस से नॉर्मली, उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दूसरा चीज कि इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल फाई या फिर कैपिटल फाई से, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल फाई और कैपिटल फाई। तीसरा चीज मैथमेटिकली इट इज डिनोटेड बाय, मैथमेटिकली इट इज गिवन बाय फाई इज इक्वल टू ई डॉट एस, means it is the dot product of electric field and the area element. क्लियर? चूंकि डॉट प्रोडक्ट है, एज इट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया एलिमेंट, देयरफॉर इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी होता है। एंड फिफ्थ वन इज इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर और अदर यूनिट इज वोल्ट मीटर। क्लियर? तो कल जो जहां तक पढ़ा दिए थे, कल बताए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यहां तक आपको बता दिया गया था, आज फिर एरो मार करके लिखिएगा, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, 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 इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। हाँ बोलिए। हाँ कर रहे हैं। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। फिर एरो मार के लिखिएगा, इट्स एसआई यूनिट इज, इट्स एसआई यूनिट इज, इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब इनवर्स 1। इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब इनवर्स 1। इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब इनवर्स 1। और वोल्ट मीटर, we can say right there, like this is volt meter, its SI unit is Newton meter square Coulomb inverse 1 और volt meter। फिर एरो मार के लिखिएगा, फॉर अ क्लोज्ड फिगर, फॉर अ क्लोज्ड फिगर, फॉर अ क्लोज्ड फिगर inward flux is taken as, inward flux is taken as, inward flux is taken as negative, negative, inward flux is taken as negative, and the outward flux, and the outward flux, and the outward flux is taken as positive, and the outward flux is taken as positive, and the outward flux is taken as positive। Let's see here, suppose you have to given a circular body like this, if the electric field lines enters here, electric field lines enters here, and the electric field lines emerge from here, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ प्रवेश करता है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से निकलता है, दिस इज अ कंडक्टिंग बॉडी, और यू कैन यू नो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनसाइड द कंडक्टर इज
does not exist, means electric field inside the conductor is equal to 0. Therefore that's why the electric field inside the conductor is not exist, and here the electric field lines enters and the here electric field lines emerge, मतलब यहाँ इंटर कर रहा है और यहाँ से निकल रहा है। अब आप जानते हैं कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटर करता है वहां पर चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जहां पर इंटर करता है, आपको बताए होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स एट द नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकलता है और नेगेटिव पर टर्मिनेट करता है। अब चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकलता है और नेगेटिव पर टर्मिनेट करता है, मतलब निकलेगा कहां से, इमर्ज कहां से करेगा, पॉजिटिव से, और इंटर कहां करेगा, नेगेटिव पर। तो चूंकि यहां पर इंटर कर रहा है तो इंटर कहां पर होता है, नेगेटिव चार्ज पर। Here the electric field lines enters at this position। चूंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटर कर रहा है, अगर यहां पर इंटर कर रहा है तो हम तो पढ़े हुए हैं कि इंटर कहां करता है, जहां की इलेक्ट्रिक चार्ज निगेटिव होता है। अब इलेक्ट्रिक चार्ज अगर निगेटिव जहां होता है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटर कर रहा है, वहां पर यहां पर जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक चार्ज निगेटिव होता है वहां पर ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटर करता है, और यहां पर इंटर कर रहा है, इसका मतलब है कि यहां चार्ज निगेटिव होगा, तभी पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तभी पॉसिबल है अगर यहां निगेटिव होगा, यहां इंटर करने का मतलब इंटर तभी होगा जब चार्ज निगेटिव होगा, और इंटर अगर यहां पर हो रहा है इसका मतलब है कि यहां पर चार्ज निगेटिव होगा, तभी हो रहा है, अदरवाइज नहीं होगा। अगर यहां निगेटिव हो रहा है तो चार्ज निगेटिव के कारण फ्लक्स जो होगा इससे जुड़ा हुआ वो यहां पर निगेटिव होगा। हियर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नेगेटिव। अब चूंकि यहां से इमर्ज कर रहा है, निकल रहा है तो निकलेगा कहां से, हमेशा पॉजिटिव से निकलता है। तो पॉजिटिव से निकलता है तो उस स्थिति में अगर पॉजिटिव से यहां पर निकालिएगा तो उस स्थिति में ऑब्वियसली है कि निकलने का मतलब है इमर्ज कहां से होता है, पॉजिटिव चार्ज से। इमर्ज तभी होगा जब पॉजिटिव चार्ज होगा। अब पॉजिटिव चार्ज होगा, यहां से इमर्ज हो रहा है, इसका मतलब है कि यहां पॉजिटिव चार्ज है तब इमर्ज हो रहा है, अदरवाइज नहीं होगा, क्योंकि निकलता है, ओरिजिनेट होता है पॉजिटिव से, और यहां से ओरिजिनेशन हो रहा है, निकल रहा है, इसका सीधा मतलब है यहां पॉजिटिव चार्ज होगा, और पॉजिटिव चार्ज होगा इसलिए फ्लक्स भी पॉजिटिव ही होगा, निगेटिव नहीं होगा। तो यहां पर जो होगा सो फ्लक्स पॉजिटिव होगा। हेयर चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, हेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटर्स at this surface, the electric field lines enters, that's why the electric flux linked with that surface is negative, and here the electric field lines emerge out, यहां निकल रहा है, that's why the electric flux linked with that surface is positive। here minus phi and this is plus phi। तो in case of any closed body the electric field lines enters at the surface is linked with the negative electric flux, and the electric field lines emerge out from the surface is linked with the positive flux। मीन्स यहां नेगेटिव फ्लक्स होगा, यहां पॉजिटिव फ्लक्स होगा। नेगेटिव फ्लक्स जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा वहां नेगेटिव फ्लक्स होगा, या फिर जहां इंटर करेगा वहां पॉजिटिव फ्लक्स होगा, सॉरी बाहर निकलेगा वहां पॉजिटिव फ्लक्स होगा। अगर आप इसको दूसरे अंदाज में भी समझ सकते हैं, इन द अदर वे, आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब लेफ्ट टू राइट है, किसी भी सरफेस पर अगर आप एरिया खींचिएगा तो एरिया वेक्टर, कल बताए थे कि एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, गिवन सरफेस, जो भी गिवन सरफेस है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एरिया वेक्टर होता है। अब सवाल है कि जो गिवन सरफेस है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एरिया वेक्टर होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, तो एरिया वेक्टर इधर की ओर होगा, तो परपेंडिकुलर। अब आप देख रहे हैं कि एक होता है पैरेलल, पैरेलल का मतलब होता है कि दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा। अगर एंटी पैरेलल होता है तो एंटी पैरेलल का मतलब है कि दोनों के बीच का एंगल जो होगा सो 180 डिग्री होगा, और अगर परपेंडिकुलर होता है तो दोनों के बीच का एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा। अब सवाल यहाँ ये है कि ये एक दूसरे के क्या है, एंटी पैरेलल है, तो एंटी पैरेलल है तो दोनों के बीच का एंगल थीटा का जो वैल्यू होगा वो दोनों के बीच का एंगल होगा 180 डिग्री। अब चूंकि दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री होगा तो आप पढ़े होइएगा कि फ्लक्स यू इन द प्रीवियस क्लासेस वी स्टडी अबाउट द ई फाई इज इक्वल टू ई डॉट एस दैट इज इक्वल टू ई एस कॉस थीटा, and es cos theta that is es
cos थीटा के जगह पर 180 डिग्री है और cos 180 का वैल्यू -1 होता है, दैट इज -es, दैट्स व्हाई इट इज -5। इसलिए यहां पर जहां पर इंटर होता है वहां -5 होता है। फिर से समझिए, जहां इंटर कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर की ओर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड इन आउटवर्ड डायरेक्शन। परपेंडिकुलर होता है सरफेस के और आउटवर्ड होता है, तो परपेंडिकुलर हो रहा है, आउटवर्ड भी हो रहा है। तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जबकि एरिया वेक्टर है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो स्वाभाविक बात है एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, एंड इन केस ऑफ एंटी पैरेलल थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, एज द थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, फाई इज इक्वल टू, इन द प्रीवियस क्लास वी स्टडी अबाउट द फाई इज इक्वल टू ई डॉट एस, एंड द फाई इज इक्वल टू ई डॉट एस, दैट्स व्हाई इट इज ई एस कॉस थीटा, एंड ई एस कॉस थीटा के जगह पर 180 डिग्री, एंड वी नो दैट द cos 180 डिग्री इज इक्वल टू -1, दैट्स व्हाई phi is equal to minus E dot S. Therefore, the flux linked with that surface, the flux linked with that surface where the electric field lines enters is negative, and here in this case electric field lines are from left to right, and the area vector is always perpendicular and outward to the direction of the surface. So this is parallel, and in case of parallel the theta is equal to theta is equal to 0 degree, that's why phi is equal to es, phi is equal to es cos 0 degree, and cos 0 is equal to 1. Therefore the electric flux, the surface from which electric field lines emerge out in, is linked with the positive electric flux, and the surface at which electric field lines enters is linked with the negative flux. Clear? मीन्स कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटर करेगा वहां का फ्लक्स निगेटिव होगा, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर निकलेगा वहां पर फ्लक्स पॉजिटिव होगा। द फ्लक्स लिंक्ड विथ दैट सरफेस at which electric field lines enters is taken as negative, and the surface from which electric field lines appears to emerge out, प्रतीत होता है, बाहर निकलता हुआ प्रतीत होता है, appears to emerge out is taken as positive. क्लियर? तो इसको आप बना लीजिए। फर्स्ट फिगर में इसको बना लीजिए। जी बोलिए, हाँ बोलिए ना। is taken as positive, is taken as positive. Okay, second, in case of conducting cylinder, in case of cylinder three surface lies, three surface exist. First, suppose this is cylinder, this is first surface, this is second surface, and the curved surface is third surface. Three surface exist. In case of cylindrical figure, three surface exist. This is first surface, this is second surface, that is this is first surface, this cross section is first surface, this cross section is second surface, and this is the third surface.
three surface. In case of cylinder, three surface exist. Clear? In case of first, this is, suppose this is electric field, here this is electric field. As we draw, this is electric field, and as we draw the electric, that is area vector, the area vector is always perpendicular to the surface, and in case of closed figure, it is outward normal. It is outward normal. Suppose electric field is in this direction, that is from left to right. यहाँ लेफ्ट से राइट की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है. अब इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लेफ्ट से राइट है, और एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर, आउटवर्ड परपेंडिकुलर होता है. इलेक्ट्रिक दैट इज area vector is always perpendicular to the surface, and in case of closed figure the area vector is always perpendicular as well as in outward direction. हमेशा बाहर की ओर लगता है. तो यहां पर बाहर की ओर अगर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जबकि एरिया वेक्टर है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. दोनों के बीच का एंगल जो होगा, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री होगा. अब 180 डिग्री होगा तो फ्लक्स जो होना चाहिए, अगर सपोज दिस इज द फ्लक्स लिंक्ड विद दैट सरफेस इज φ1, द फ्लक्स लिंक्ड विद दैट सरफेस इज φ2, एंड द फ्लक्स लिंक्ड विद, बिकॉज हियर इज थ्री सरफेस, द फ्लक्स लिंक्ड विद दैट सरफेस इज φ3. तो φ1 इज इक्वल टू E डॉट S, दैट इज इक्वल टू ES cos 0 degree, that is 180 degree, and the value of cos 180 degree is -1, therefore the flux is minus E dot minus ES. In similar way, if we take this surface, the electric field is from left to right, from left to right. Electric field flux is from, sorry, electric field is from left to right, and the area vector is always perpendicular to the given surface and in outward direction. The area vector is always perpendicular, that is in this direction. Therefore the electric field and the area vector are in the same direction. That's why the angle between them, that is theta, is equal to 0 degree, and as the theta is equal to 0 degree, therefore the flux linked with that surface, that is ES cos 0 degree, and the cos 0 is equal to 1. That's why the E2 is φ2 is equal to E dot S, that is positive. Here the φ1 is negative and the φ2 is positive. In third case, here if we calculate here the electric flux, φ3 is equal to, so here electric field is in this way, that is from left to right, and the area vector is always perpendicular to the surface, that is always perpendicular to the surface, that is in upward direction. Therefore the angle between them is 90 degree. That's why the flux linked with that surface, phi is equal, φ3 is equal to ES cos 90 degree, and the cos 90 is equal to 0. Therefore the flux linked with the third surface is 0. Once again, this is cylindrical body, that is cylindrical conductor. Electric field enters here and the electric fields emerge out here. Means electric field यहाँ प्रवेश करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से निकलता है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है यहाँ लेफ्ट से राइट है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन लेफ्ट से राइट है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लेफ्ट से राइट ही होगा. ठीक. अब चूंकि एरिया वेक्टर जो होता है हमेशा परपेंडिकुलर होता है गिवन सरफेस के, और आउटवर्ड नॉर्मल होता है, नॉर्मल ही नहीं आउटवर्ड नॉर्मल. अगर कोई क्लोज्ड फिगर है तो एरिया वेक्टर आउटवर्ड नॉर्मल होगा, मतलब नॉर्मल तो होगा ही लेकिन बाहर की ओर. तो यहां पर हम बाहर की ओर एरिया वेक्टर को कर दिए, यहां पर भी बाहर की ओर एरिया वेक्टर को कर दिए. तो अब यहां देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा है. इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बायां से दाहिना है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जबकि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट है, मतलब दाहिना से बायां है. अब चूंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, और अगर अपोजिट डायरेक्शन होता है तो दोनों के बीच का एंगल जो होगा वो
180 डिग्री होगा। और प्रीवियस क्लास में, कल के क्लास में हम लोग पढ़े थे कि फाई जो होता है वो डॉट प्रोडक्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। दैट्स वाई ई डॉट एस, आप डॉट प्रोडक्ट जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है ई एस कॉस थीटा, या फिर ए डॉट भी अगर होता है तो ए बी कॉस थीटा, तो ई एस कॉस 180 डिग्री। एंड वी नो दैट the value of cos 180 degree is equal to -1. That's why the flux linked with the first surface, that is this surface, is phi 1 is equal to minus es. Clear? In a similar way, here the electric field is from left to right, and the area vector drawn at this surface is always outward normal. यहां पर जो एरिया वेक्टर हम ड्रॉ करेंगे वो भी आउटवर्ड नॉर्मल होगा। और जब आप देखते हैं कि इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, एंड इन केस ऑफ पैरेलल लाइंस द थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। दैट्स वाई द फ्लक्स लिंक्ड विथ दैट सरफेस, इस सरफेस से जो फ्लक्स लिंक्ड होगा वो इसके ई एस कॉस 0 डिग्री के बराबर होगा, और कॉस 0 का वैल्यू होता है 1। देयरफॉर द फ्लक्स लिंक्ड विथ दिस गिवन सरफेस phi is equal to E dot S, that is ES. And similar, in a similar way, if we take third surface, that is the this is lateral surface, this is curved surface, this is curved surface, and this is lateral surface. If we take the flux linked with the lateral surface, then the flux linked with the lateral surface, as we know that the electric field is from left to right and the area vector is always perpendicular to the given surface, therefore the electric field is in this way and the area vector is perpendicular to the electric field. Therefore the angle between electric field and the area vector is 90 degree, and as the angle between electric field and area vector is 90 degree, therefore the phi 3, that is the flux linked with the lateral surface, is es cos 90 degree, and the value of cos 90 degree is equal to 0. That's why the flux linked with that surface phi 3 is equal to 0. क्लियर? बना लीजिए इस फिगर को, इस फिगर को बना लीजिए। ओके okay.
हो गया। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल देखिए, डाई का मतलब होता है दो, टू, एंड पोल मीन्स पोलारिटी। टू समझते हैं, टू मतलब दो, इसको समझने में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। पोलारिटी मीन्स ये एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जिसके द्वारा हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि कौन चार्ज पॉजिटिव है, कौन चार्ज नेगेटिव। दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक बाय विच वी डिस्टिंग्विश, अंतर करना, वी डिस्टिंग्विश आइदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। कोई भी बॉडी पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, इसको जिस कैरेक्टरिस्टिक, जिस गुण से हम आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं, उसको हम कहते हैं पोलारिटी। क्लियर? तो दो गो जिसमें पोलारिटी होगा उसको हम कहेंगे डाइपोल। डाई मतलब दो, आप केमिस्ट्री में भी पढ़े होइएगा, डाई मतलब दो, ट्राई मतलब थ्री, मोनो मतलब वन। तो सवाल यहां यह है कि टू पोल्स होना चाहिए, दो पोल होना चाहिए। अगर इसका हिंदी जानिए तो हिंदी में इसका होता है द्वि, और पोलारिटी का हिंदी होता है ध्रुव। मतलब जिसमें दो गो ध्रुव हो, दो ध्रुव। जैसे अर्थ का भी आप जानते होइएगा, दो गो पोल है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, मैग्नेटिज्म के कारण। ठीक उसी तरह से कोई भी अगर डाइपोल है तो उसमें दो चार्ज होगा, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़े होइएगा HCl, सबसे बेसिक एग्जांपल लेकर के चलते हैं, HCl। तो यहां पर एक H प्लस और Cl माइनस बनता है, हेयर H प्लस एंड Cl माइनस। अब सवाल है कि एक वो प्लस चार्ज है और दूसरा उतना ही माइनस चार्ज है, तो ये क्या करेगा? डाइपोल का निर्माण करेगा। मींस डाइपोल का मतलब होता है पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। इक्वल मतलब कि मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए। अगर एक 1 माइक्रोकूलम है तो दूसरा -1 माइक्रोकूलम होना चाहिए। तो पेयर है, जोड़ा है किसका? इक्वल। इक्वल मींस मैग्नीट्यूड इक्वल, एंड अपोजिट चार्जेज। अपोजिट मतलब पोलैरिटी अलग अलग होना चाहिए, एक पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा निगेटिव होना चाहिए। तो डाइपोल जो है, बेसिकली डाइपोल इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, लाइक HCl, H plus Cl minus. अगर if we take H2O, then H plus and OH minus. Here +1 charge and this is -1 charge. The magnitude is 1 1. However, the polarity is one is positive and other is negative. Therefore, H2O is also a dipole. H2O is also a dipole. Any if we say that the any that is electrovalent bond, if you take electrovalent bond, you study in the chemistry that the electrovalent bond is that bond in which one is donor and one is acceptor. एक डोनर होता है और अगर एक एक्सेप्टर होता है तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। केमिस्ट्री में आप पढ़े होइएगा कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड वह बॉन्ड होता है जिसमें एक डोनर होता है और एक एक्सेप्टर होता है, एक देने वाला है और एक लेने वाला है। स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए, टू अचीव स्टेबिलिटी, वन दैट इज मेटालिक, मेटल लूजेज इलेक्ट्रॉन्स एंड नॉन मेटल एक्वायर्स इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए, और दूसरा इलेक्ट्रॉन को एक्वायर करता है, अर्जित करता है।
तो ये जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज के बीच में हमेशा बनता है। दैट इज एक मेटल जनरली बेसिकली एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में बेसिकली बनता है। Electrovalent bond is always generally, that not always, generally forms between a metal and a non-metal, in which metal loses electrons and non-metal acquires electron, or we can say that the gain electron. That's why metal is positively charged and the non-metal is negatively charged, because the number of electrons decreases in case of metal, the electrons loses in case of metal, and the electrons acquires by the non-metal. That's why the number is, as the electron is negative charge, therefore the non-metal is negatively charged and the metal becomes positively charged in case of electrovalent bond. तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के बीच में एगो पॉजिटिव चार्ज है दूसरा नेगेटिव चार्ज है, तो एगो पॉजिटिव है दूसरा, देखिए मैग्नीट्यूड बराबर है, magnitude is same but polarity is different. If that is a dipole है क्या, that is a pair of equal means magnitude equal and opposite charges separated by some distance. अगर आप H2O का एग्जाम्पल लेते हैं तो H2O में H प्लस और OH माइनस के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है ये होता है 0.53 एंगस्ट्रॉम. You know that the 1 angstrom is equal to 10 to the power minus 10 meter. 1 angstrom is equal to 10 to the power minus 10 meter. So this is positive charge, this is equal negative charge, and the separation between them is 0.53 angstrom. That's why H2O is an electric dipole. H2O इसलिए इलेक्ट्रिक डाइपोल है क्योंकि इसमें एक H प्लस दैट इज 1 प्लस चार्ज और एक OH माइनस आयन दैट इज 1 नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन होता है, और ये दोनों चार्ज जो है 0.53 एंगस्ट्रॉम के द्वारा सेपरेटेड है. तो डाइपोल होता क्या है कि डाइपोल क्या है, पेयर है, जोड़ा है, क्या चीज का, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, मतलब इट इज अ पेयर ऑफ इक्वल. इक्वल मतलब मैग्नीट्यूड बराबर होगा, एक अगर 5 माइक्रोकूलम का होगा तो दूसरा भी 5 माइक्रोकूलम का ही होगा, बट डिफरेंट पोलैरिटी. एक पॉजिटिव 5 माइक्रोकूलम होगा तो दूसरा नेगेटिव -5 दैट इज नेगेटिव 5 माइक्रोकूलम होगा. तो डाइपोल जो है वो पेयर है इक्वल और अपोजिट चार्जेज का, जो कि किसी न किसी डिस्टेंस के द्वारा सेपरेट होता है. हर एक में आप वाटर लीजिएगा तो वाटर के केस में H प्लस और OH माइनस आयन का फॉर्मेशन होता है, तो H प्लस एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा नेगेटिव चार्ज है और ये किसी डिस्टेंस के द्वारा सेपरेट है दैट इज 0.53 एंगस्ट्रॉम. अगर आप HCl लेते हैं तो H प्लस और Cl माइनस में ब्रेक होता है, तो वहां भी एक पॉजिटिव चार्ज है दूसरा नेगेटिव चार्ज है, वो भी किसी डिस्टेंस के द्वारा सेपरेट होता है. NaCl लेते हैं तो Na प्लस और Cl माइनस, Na प्लस और Cl माइनस, देखिए जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, 1 पॉजिटिव चार्ज 1 नेगेटिव चार्ज. तो यहां पर भी डाइपोल का निर्माण होता है, बिकॉज डाइपोल के लिए क्या चाहिए, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, सपोज मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, सेपरेशन के द्वारा सेपरेट होना चाहिए, कुछ ना कुछ डिस्टेंस के द्वारा सेपरेट होना चाहिए. तो डाइपोल के लिए 2 चार्ज है, ये है कुछ ना कुछ इसके बीच का बॉन्ड लेंथ होगा ही, आप केमिस्ट्री में पढ़े होइएगा बॉन्ड लेंथ. तो बॉन्ड लेंथ है ये है, सेपरेट 2 चार्ज इक्वल और अपोजिट चार्ज है ये है, सेपरेशन है ये है, तो इसको हम कहेंगे डाइपोल. मींस डाइपोल इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस. ये एक जोड़ा है जहां पर एक चार्ज पॉजिटिव होगा और दूसरा चार्ज उतना ही नेगेटिव होगा. जैसे इफ यू गिवन दैट इज one is positive plus q and another is minus q. That is consider this is plus q and this is minus q, and it is separated by some distance. This is called dipole. यहां आप देख सकते हैं एक पॉजिटिव चार्ज स्मॉल q है और दूसरा उतना ही नेगेटिव चार्ज माइनस स्मॉल q है.
ये पूरा जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल मींस पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। यहां जितना पॉजिटिव है उतना ही निगेटिव चार्ज भी सेपरेट हो रहा है किसी ना किसी डिस्टेंस के द्वारा। इसका जो सेपरेशन होता है वो 2a होता है। बेसिकली 2a क्यों ले लिया जाता है? a भी ले सकते थे, 3a भी ले सकते थे, 5a भी ले सकते थे, कुछ भी लिया जा सकता है। ये ए भी यहां लिया जा सकता था, लेकिन 2a ही क्यों? इसलिए क्योंकि जब आप आगे कैलकुलेट करिएगा तो वहां पर सेंटर से डिस्टेंस को मेजर किया जाता है, और सेंटर से जब डिस्टेंस को मेजर किया जाएगा तो आपको a/2 डिस्टेंस लेना होगा। उस फ्रैक्शन से बचने के लिए यहां 2a लिया गया है। उस फ्रैक्शन से बचने के लिए, टू एलिमिनेट दैट डिफिकल्टी, हियर 2a इज टेकन इन प्लेस ऑफ a के जगह पर यहां 2a सिर्फ उस डिफिकल्टी को दूर करने के लिए लिया गया है, क्योंकि यहां पर कोई भी डिस्टेंस सेंटर से मेजर किया जाता है, मिड पॉइंट से मेजर किया जाता है। तो ये जो है, ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द डाइपोल। दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द डाइपोल। तो यहां 2a लेने का मकसद कुछ नहीं है, सिर्फ ये मकसद है कि आगे आने वाले डेराइवेशन में जो भी डिफिकल्टी है उसको एलिमिनेट करना है, हटाना है। क्योंकि आगे जब आप डेराइवेशन करिएगा तो आपको डिस्टेंस सेंटर से लेना होगा, और सेंटर से अगर आप डिस्टेंस लेते हैं तो उस स्थिति में आपको, अगर a यहां पर लेते 2a के प्लेस पर, इफ यू टेक a here in place of 2a, then this distance is a/2 and this distance is a/2, where fraction exists, and to remove फ्रैक्शन को हटाने के लिए ही यहां a की जगह 2a लिया गया है। क्लियर? तो इसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ द डाइपोल। दिस इज कॉल्ड लेंथ ऑफ द डाइपोल। दिस इज कॉल्ड लेंथ ऑफ द डाइपोल। 2a जो है वो क्या है? लेंथ ऑफ द डाइपोल। जैसे आपको बताए हैं कि H प्लस और OH माइनस के बीच में जो बॉन्ड बनता है, इसके बीच का जो बॉन्ड लेंथ है वो 0.53 एंगस्ट्रॉम है। तो 0.53 एंगस्ट्रॉम जो होगा वो H प्लस और OH माइनस जो डाइपोल बना रहा है उसका लेंथ है, लेंथ ऑफ द डाइपोल, उसका लेंथ। क्लियर? मींस इलेक्ट्रिक डाइपोल is a pair of equal and opposite charges separated by some distance। जहां पर दोनों के बीच का जो सेपरेशन होगा, इक्वल का मतलब पहले ही क्लियर हो जाइए, मैग्नीट्यूड बराबर होगा। एक अगर 2 माइक्रोकुलम्ब है तो दूसरा भी 2 माइक्रोकुलम्ब ही होगा। अपोजिट का मतलब है पोलैरिटी अलग अलग होगा, एक 2 होगा तो दूसरा -2 होगा। कभी भी 2 माइक्रोकुलम्ब और 2 माइक्रोकुलम्ब के बीच में डाइपोल का निर्माण नहीं हो सकता है। सेम पोलैरिटी के बीच में डाइपोल का निर्माण नहीं हो सकता है। 2 सिमिलर चार्जेस नेवर फॉर्म्स डाइपोल। 2 अनलाइक चार्जेस ऑलवेज फॉर्म्स अ डाइपोल। अनलाइक चार्ज है, डाइपोल का फॉर्मेशन होगा। सिमिलर चार्ज है, कभी डाइपोल का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो पेयर है। अब यहां पर, यहां 2 लाइन आपको आगे पढ़ना है, 2 लाइन एग्जिस्ट करता है बेसिकली। इसको हम कहते हैं एक्सियल लाइन। दिस इज कॉल्ड एक्सियल लाइन। इसको कहते हैं एक्सियल लाइन, जो उस एक्सिस के अलोंग जाता है। द लाइन विच एक्सटेंडेड इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस। एक्सिस के अलोंग जो दोनों को लाइन, जो दोनों चार्ज को जो मिला रहा है, उसी को अगर आप एक्सटेंड कर दीजिएगा तो उस लाइन को हम कहते हैं एक्सियल लाइन। उस लाइन को एक्सियल लाइन कहा जाता है। और इस ये जो आप मिड पॉइंट देख रहे हैं, इसके जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो लाइन खींचिएगा, इसको हम कहते हैं इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन। इस एक्सियल लाइन को, एक्सियल लाइन पर अगर कोई भी पॉइंट लेते हैं
तो उसको हम इनडॉन पोजीशन भी कहते हैं। चाहे इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। सवाल यहां यह है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है वो पेयर है क्या चीज का, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। pair of equal and opposite charges separated by some distance, like HCl, H2SO4, ZnCl2, H2O, AlCl3, MgCl2, KCl, anyone, any that is any electrovalent bond basically। तो सवाल यहां यह कि पेयर है क्या चीज का, इक्वल और अपोजिट चार्ज का, जो किसी डिस्टेंस के द्वारा सेपरेट होगा। क्लियर? राइट डाउन इलेक्ट्रिक डाइपोल। It is a pair of it is a pair of it is a pair of equal and opposite charges, pair of it is a pair of equal and opposite charges, pair of equal and opposite charges separated by some distance, equal and opposite charges separated by some distance, separated by some distance, separated by some distance। इस फिगर को बना लीजिए। लिखेगा लेंथ, लिखेगा लेंथ ऑफ द डाइपोल, लेंथ ऑफ द डाइपोल, लेंथ ऑफ द डाइपोल, एरो मार कर लिखिएगा लेंथ ऑफ द डाइपोल। the separation between the separation between the separation between two charges, the separation between two charges of an electric dipole, the separation between two charges of an electric dipole, the separation between two charges of an electric dipole comma is known as length of the dipole, length of the dipole,
लेंथ ऑफ द डाइपोल। देखिए एक क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में अक्सर पूछता है, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में देख लीजिएगा ऑब्जेक्टिव में, या फिर सीबीएसई में भी पूछे हुआ है 1 नंबर के क्वेश्चन में। 1 नंबर का जो 20 क्वेश्चन होता है, पहले 5 आता था, अब 20 आता है। बिहार बोर्ड में जो 35 क्वेश्चन आता है, उसमें प्रीवियस ईयर में पूछे हुआ था कि टोटल चार्ज इलेक्ट्रिक डाइपोल का कितना होता है। द टोटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज हाउ मच, कितना होता है हाँ, तो कितना होगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि एक पॉजिटिव है और दूसरा उतना ही निगेटिव है। एक पॉजिटिव है और दूसरा उतना ही निगेटिव है, तो अगर दोनों को जोड़िएगा तो कितना होगा? एक क्यू फिर माइनस क्यू, दैट इज इक्वल टू 0। द टोटल चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज इक्वल टू 0। इसलिए टोटल चार्ज 0 होगा क्योंकि एक पॉजिटिव है और दूसरा उतना ही निगेटिव है। अगर एक 2 माइक्रोकूलम है तो दूसरा -2 माइक्रोकूलम होगा। और आप जानते हैं कि जोड़ करके 0 तभी हो सकता है जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, साइन डिफरेंट हो। अब जैसे आपको कहा है कि जोड़ करके 0 कर दीजिए, ये तभी पॉसिबल है जोड़ करके 0 करना जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो। कभी भी आप देख लीजिए, कोई भी लीजिए, जैसे 5 है, कोई ऐसा नंबर इसमें जोड़िए जो कि 0 हो जाए, तो 5 में सिर्फ वही नंबर जुड़ करके 0 होगा जिसका कि मैग्नीट्यूड सेम होगा और साइन अलग होगा। तो डाइपोल के केस में तो होता ही है, मैग्नीट्यूड सेम है और साइन पोलैरिटी अलग अलग है, तो एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा उतना ही नेगेटिव चार्ज है। इसलिए टोटल चार्ज जो इलेक्ट्रिक डाइपोल का होता है वो 0 के बराबर होता है। द टोटल चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज इक्वल टू 0 बिकॉज the magnitude of the two charges are equal and their polarities are different, and if we add the same magnitude and opposite polarity then it must be 0. That's why the total charge of an electric dipole is equal to 0. Write down the total charge, the total charge, the total charge of an electric dipole, the total charge of an electric dipole, the total charge of an electric dipole is equal to 0, is equal to 0, is equal to 0। इसको लिख लीजिए, जो बाउंडेड में है, बाउंडेड फिगर के अंदर जो है उसको लिख लीजिए। अगला देखिए, एक डाइपोल को आइडियल डाइपोल कब कहेंगे? व्हेन अ डाइपोल इज सेड टू बी आइडियल डाइपोल। तो एक डाइपोल को देखिए, आइडियल वर्ड जो है वो सिर्फ कहने के लिए होता नहीं है। आइडियल वर्ड सिर्फ कहने के लिए है। नथिंग इज आइडियल, नथिंग इज परफेक्ट। चाहे आदमी हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी चीज, कोई भी नेचुरल बॉडी, कुछ भी आइडियल नहीं होता है। इससे फिर वो कहने का बात है आइडियल पर्सन। आइडियल पर्सन है, इसमें भी कुछ कमी होगा। अच्छाई भी हो सकता है, बुराई भी हो सकता है, हर व्यक्ति में है। वो आइडियल कोई है ही नहीं। नो वन इज आइडियल। तो ये सिर्फ कहने का बात है, सिर्फ कल्पना है कि ऐसा हो सकता है। आप केमिस्ट्री में पढ़े हुएगा आइडियल गैस इक्वेशन, पढ़े हैं?
आइडियल गैस इक्वेशन। लेकिन आपको एग्जाम्पल नहीं बताया गया होगा कि कौन है आइडियल गैस, क्योंकि होता ही नहीं है, आइडियल गैस होता ही नहीं है। वो कल्पना किया गया है कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, इफ लगा हुआ है, इफ इट इज आइडियल देन इट फॉलो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। यदि आइडियल होगा तब एनआरटी को फॉलो करेगा, अगर आइडियल नहीं होगा तो नहीं होगा। आइडियल होता ही नहीं है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होगा नहीं। वो सिर्फ अभी आपको आसान बनाने के लिए पीवी इज इक्वल टू एनआरटी पर काम चल रहा है, मतलब आपको जो रियल इक्वेशन है वो वान डर वाल्स इक्वेशन है। आप केमिस्ट्री में पढ़े हुएगा वान डर वाल्स इक्वेशन। PV is equal to nRT is used only for ideal gas and the ideal gas does not exist. आइडियल गैस एग्जिस्ट नहीं करता है। पर्सन में भी आइडियल पर्सन है नहीं। हो सकता है आपके लिए जो चीज अच्छा हो वही चीज किसी के लिए खराब हो। आप किसी को अपने आधार पर जज करते हैं, हाँ वो आदमी अच्छा है वो आदमी खराब है। आप जज करने वाले होते कौन है? आप किसी को अपने आधार पर जज करते हैं, हो सकता है वो अपने आधार पर सही हो। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि आइडियल कोई नहीं है। नथिंग इज आइडियल, नथिंग इज परफेक्ट। हो सकता है कि आप जिसको खराब कहते हैं वो किसी दूसरे के लिए अच्छा हो, आप जिसको आइडियल कहते हैं वो किसी दूसरे के लिए खराब हो। तो आपके जजमेंट से तो दुनिया बदलेगा नहीं। क्यों आप किसी के बारे में जजमेंट कर दीजिएगा, हाँ ये बहुत बुरा आदमी, ठीक है। मान लीजिए किसी से झगड़े हो गया, सपोज करिए किसी से आपको लड़ाई हो जाए, तो इसका ही मतलब थोड़ी है कि वो आदमी खराब है। नहीं, वो आदमी खराब नहीं है, आपका और उसके मत का अंतर है, आपका सोच और उसके सोच का अंतर है। वो आपका एनिमी थोड़ी है, दुश्मन थोड़ी है, वो आपके और उसके मत में अंतर है। आपका कुछ और मत है, उसका कुछ और मत है। दैट इज ठीक उसी तरह से आइडियल डाइपोल सिर्फ एक कल्पना है। दिस इज ओनली इमेजिनेशन। आइडियल डाइपोल इज ओनली इमेजिनेशन, दिस इज नॉट एग्जिस्ट। क्योंकि यहां पर कहा गया है कि चार्ज बहुत बड़ा होना चाहिए। आइडियल डाइपोल के केस में क्या होगा, चार्ज इज आइदर चार्ज, आइदर मतलब दोनों में से दो चार्ज है, आइदर चार्ज इज वेरी लार्ज, very large and separation between them is negligible। चार्ज बहुत बड़ा होना चाहिए, लेकिन दोनों के बीच का जो सेपरेशन होना चाहिए वो बहुत ही नगण्य होना चाहिए, 9 के बराबर। जैसे आप वाटर में देखे हैं, वाटर के केस में एक H प्लस और OH माइनस आयन आया है, एक प्लस है दूसरा माइनस है, और इसके बीच का जो सेपरेशन है 0.53 एंगस्ट्रॉम। ये आइडियल नहीं है। आइडियल हो माना जा सकता है कि आइडियल है, लेकिन वास्तविक में आइडियल नहीं है, जबकि सेपरेशन बहुत छोटा है। सेपरेशन इज वेरी मच स्मॉलर देन द चार्ज दैट इज +1 और -1, बट it is not an ideal dipole because ideal dipole के लिए चार्ज बहुत बड़ा होना चाहिए और सेपरेशन बहुत छोटा होना चाहिए। नेग्लिजिबल, नगण्य, 9 के बराबर, चार्ज बहुत बड़ा, सेपरेशन बहुत छोटा। तो ये सिर्फ कल्पना है, इमेजिनेशन है, होता नहीं है। आइडियल चीज हो, ये हो तो एग्जिस्ट नहीं करता। ये कल्पना है कि यदि ऐसा होगा तब ऐसा होगा। आप बहुत सारे ऐसे इसमें भी हो, मतलब ऐसे भी होंगे जो कल्पना करते होंगे कल से 5 घंटा कम से कम लॉकडाउन है, 10 घंटा पढ़ेंगे, 4 घंटा पढ़ेंगे, 5 घंटा पढ़ेंगे। दिस इज ओनली, कुछ लोगों के लिए सिर्फ कल्पना है, इमेजिनेशन है, काल्पनिक है, होता थोड़ी है। अच्छा कल से, आज नहीं कल से, फिर कल, इट इज ओनली इमेजिनेशन। सिमिलर वे आइडियल डाइपोल डज नॉट एग्जिस्ट, इट इज ओनली इमेजिनेशन।
क्योंकि आइडियल डाइपोल में कहता है कि दोनों में से एक, दोनों में से कोई चार्ज अगर आप उठा लीजिए, रैंडमली कोई चार्ज ले लीजिए, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो दोनों में से कोई चार्ज ले लीजिए, तो वो चार्ज जो है, एक चार्ज बहुत बड़ा होगा और दूसरा चार्ज दोनों में से कोई भी चार्ज ले लीजिए, बहुत बड़ा चार्ज होगा, और जो सेपरेशन होगा वो बहुत 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 छोटा होगा। तो उस तरह के डाइपोल को हम कहेंगे आइडियल डाइपोल। क्लियर? राइट डाउन आइडियल डाइपोल। A dipole is said to be 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 ideal dipole if मतलब यदि ऐसा होगा तब। A dipole is said to be ideal dipole. A dipole is said to be ideal dipole if the magnitude of the either charge the magnitude of the either charge the magnitude of the either charge is very much large. The magnitude of the either charge is very much large. The magnitude of the either charge is very much large. And the separation between them is negligible. And the separation between them is negligible. Separation between them is negligible. Negligible का स्पेलिंग NEGLIGIBLE। नेग्लिजिबल। हो गया? लिखिएगा एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। हाँ तो ये क्लास है ना, है क्या है? हाँ तो बस खत्म है। एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। एरो मार के लिख लीजिएगा HCl, H2SO4, ZnCl2, NaCl, etc। ठीक है, तो रहने दीजिए, इस पर चर्चा करेंगे कल। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखे हैं, अगर हो जा शूट हो गया होगा तो भेज देंगे। अगर ठीक ठीक।